Good morning, dear friends. Welcome to the short-term course on e-content development organized by UGC Human Resource Development Center, Ranchi University, Ranchi. Today, in this class, we are going to discuss about criterion referenced and norm referenced test. So let's see what are these terms. I will share my PPT. There are different kinds of test, assessment or evaluation. The most commonly termed is continuous comprehensive evaluation, that is commonly called as CCE. Then there are criterion reference test, that is CRT, norm reference test, that is NRT, formative assessment, that is FA, and summative assessment, that is SA. Then we also hear about internal evaluation and external evaluation. So all these terms get a bit confusing, but we cannot cover everything in this class only. So we will discuss today about only criterion reference test and norm reference test. Robert Glaser in 1963, in his article Instructional Technology and the Measurement of Learning Outcomes, published in American Psychological Association, American Journal of Psychology, firstly distinguished between criterion reference and norm reference test or measurement or assessment. So what are this criterion reference test? When evaluation of ability of students is done on some criteria, that is criteria is already fixed or goals are fixed or performance level is fixed, it is called criterion reference test or measurement. The purpose of CRT is to assess whether objectives are achieved or not. It describes individual performance in comparison to a fixed criteria or standard. It tells about absolute quantity of attained knowledge. Whatever the student has achieved during the course of learning, what he has, how much, what and how much he or she has achieved, it tells about that. So the word criterion in evaluation has usually three meanings. The first one is instructional objectives. Like we say, the objectives, these are the objectives, instructional objectives, which we set before going to the classroom or before starting the teaching learning process. These are of two types. There are general objectives and there are specific objectives. So we define these objectives well before starting our lesson. Then there is desired level of learner's ability. This is the second criteria, how much we wish to develop in the student's personality, that is desired level of learner's ability. And third is well defined behavior domain. ये behavior वो वाली नहीं है जो हम कहते हैं कि उसका स्वभाव अच्छा है, वो नहीं, बल्कि whatever the student has learned during the course of teaching learning, जितना भी उसके knowledge में, उसके ability में जो add हुआ है, वो उसका उस टॉपिक को लेकर उसका बिहेवियर डोमेन होता है, उस सब्जेक्ट को लेकर उसका बिहेवियर डोमेन होता है. तो schools में या colleges में there are so many different subjects, so we define behavior domain as per the different subjects. So the example of criterion reference test is, that is we can say 60%. लाइक फर्स्ट डिवीजन हम कहते हैं 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, 45 to 60% में सेकंड डिवीजन होता है, और 33 के नीचे हम कहते हैं फेल होता है, या हम 75% अबव के ऊपर कहते हैं डिस्टिंक्शन होता है. सो दीज आर द क्राइटेरिया विच आर फिक्स्ड ऑलरेडी एंड द स्टूडेंट हैज टू जस्ट सी कि वो कितना तक अचीव कर पाया है एंड द रिजल्ट विल बी आउट. देन द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये क्या है? व्हेन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इवैल्यूएटेड with reference to some specific group, it is called norm reference test. It compares the individual's performance with other person who is taking the same test. So its purpose is to discriminate between high achievers and low achievers. तभी तो मालूम चलेगा कि किसने सच में मेहनत किया, तो वो सबसे खुद ब खुद सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस इसमें होते हैं, हम लोग आगे चल के देखेंगे उसमें. इट फोकसेस ऑन वेयर वन स्टैंड्स इन रिलेशन टू अदर्स ऑफ सेम कैलिबर और लेवल. सारे के सारे एक ही लेवल के होते हैं और सब एक साथ उस एग्जाम को देते हैं, एंड देन द पर्सन हु हैज द मास्टरी ऑफ नॉलेज, who gets that person gets through the test, and then he or she is called successful. तो entrance test इसके एग्जाम्पल क्या है? entrance test like CAT, MAT, AIEEE, ये सब इसके एग्जाम्पल है. जैसे कि हम देखते हैं उसमें एक
नॉर्म डिसाइड होता है कि सारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। अगर क्वेश्चंस आसान थे तो सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्कोर करेंगे वो सबसे ऊपर होंगे और उनका सिलेक्शन होगा। तो ये नॉर्म बताएगा कि सारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, तो फिर हम ऊपर से उनको सिलेक्शन करते हैं। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। So a student may be typical according to norm reference measures but may not achieve proficiency as per criterion reference measures. वो टिपिकल हम इस तरह से कहते हैं कि वो टिपिकल टू द ग्रुप है, वो टिपिकल बिहेवियर जो है उस पूरे ग्रुप का बिहेवियर है, दैट्स व्हाई वी से टिपिकल। एंड द प्रोफिशिएंसी लेवल इज डिसाइडेड बाय द क्राइटेरियन कि कितनी प्रोफिशिएंसी हमें चाहिए, जबकि हम उसे ये रिजल्ट देंगे कि वो पास है, फेल है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, डिस्टिंक्शन है, ये सभी हम इसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। सो अ स्टूडेंट मे बी प्रोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरियन रेफरेंस measures but may not achieve performance level as per norm reference measures. Then we will see that what are the differences between criterion reference test and norm reference test. So this is a table which shows that CRT is always based on a predetermined cutoff score. क्योंकि यहाँ पे कोई कट ऑफ बाद में नहीं, एग्जाम के बाद नहीं, प्रीडिटरमाइंड मींस एग्जाम के पहले से पता है कि इतने कट ऑफ पे हमारा ये रिजल्ट होना है, इतने कट ऑफ पे ये रिजल्ट होना है। बट नॉर्म रेफरेंस में इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अ नॉर्मेटिव ग्रुप, दैट नॉर्मेटिव ग्रुप विच ऑल स्टूडेंट्स आर टुगेदर गिविंग द एग्जाम, वही है नॉर्मेटिव ग्रुप। देन द second point we will discuss, its purpose is to assess the objectives in terms of behavioral changes. तो हम जैसे जैसे उनके बिहेवियर में चेंज आता है, यानी कि जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है तो खुद ब खुद बिहेवियर भी चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा यानी कि उनकी वो नॉलेज बढ़ जाएगी, वो एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बताता है इट्स पर्पस। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसके पर्पस, इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन एंड डिस्क्रिमिनेट द हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स, ये इस पे फोकस करता है। Then CRT is used in taking categorical decisions of pass fail with respect to certain level of competence in achieving specific objectives. Specific objectives जो कि हम जब उस क्लास के लिए हम पढ़ाते हैं, जिस समय कि उस क्लास में वो कितना अचीव कर लेगा, पर्टिकुलर जैसे कि अगर क्लास 8 है या क्लास 10 है तो उस क्लास में वो कितना अचीव कर लेगा, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बट जनरल ऑब्जेक्टिव विल बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, थ्रू आउट जब तक उस सब्जेक्ट को बच्चा पढ़ेगा तब तक वो पूरा होता रहेगा। Then NRT is useful in measuring students general level of knowledge or understanding of a particular domain knowledge. यहाँ पे फोकस है कि किसी चीज को हम डिटेल में कितना जानते हैं, कितना वास्ट तरीके से जानते हैं। And CRT tells about absolute quality of attained knowledge and compared with external standard or criterion. यहाँ पे हम इसको ये एब्सोल्यूट क्वालिटी भी देखता है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देखता है कि हम कितनी चीज़ें जानते हैं और कितना सटीक जानते हैं, और उसको हम किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया से भी हम उसको देख सकते हैं कि वो जो मानदंड है या मापदंड जिसको कहते हैं वो पूरे देश में एक समान है। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो पूरे देश में फर्स्ट डिवीजन है, ऐसा नहीं कि किसी एक जगह के लिए, तो वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से भी वो मैच करता है। Then NRT tells the relative position of an individual as compared to others. ये दूसरे के तुलना में कहाँ पर है ये बताता है। CRT here individual students score is not affected by performance of peer group, जबकि NRT में the students performance is compared against the performance of peer group. वहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें अपना स्कोर करना है, अपना परसेंटेज लाना है, जबकि एनआरटी में हमें देखना है कि दूसरे बच्चे ने कैसा किया। हमने तो अच्छा किया बट अगर दूसरे ने हमसे भी ज़्यादा अच्छा किया तो फिर वो सक्सेसफुल है, मैं पीछे हूँ। देन सीआरटी इज यूज्ड टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्योंकि ये आमतौर पे कोर्स पे पढ़ाया ये टेस्ट होता है। सीआरटी जो है वो कोर्स बेस्ड होता है, यानी जब भी हम कोई कोर्स को कंडक्ट करते हैं तो उस कोर्स के एंड में हम सीआरटी से ही उसका असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारा टीचिंग मेथड्स सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं उसके रिजल्ट के आधार पे। जबकि एनआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पढ़ाई से स्कूल इंस्टीट्यूशन से हट के बच्चा उसको लेता है एग्जाम को, तो वहाँ पे कोई डायरेक्ट टीचर नहीं होते हैं। इट इज़ यूज टू इंश्योर लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ देखा जाता है कि ये बच्चों ने कितनी लर्निंग की। देन सीआरटी अटेम्प्ट्स टू इंश्योर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ अमाउंट पता चलता है क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है वो अमाउंट के लिए बना हुआ है।
Then NRT evaluates success or achievement of student learning in relative terms. वही relative वाली बात कि दूसरे बच्चे ने कितना किया उससे डिसाइड होता है. Then in CRT the test items are related to specific objectives only because वहाँ पे हम हरी जैसा मैंने बताया हर क्लास के लिए वो डिसाइड होता है, तो उस क्लास में कितना पढ़ना है उतने पढ़ने उस पढ़ाई को लेकर ही उतने का एग्जाम होता है. जबकि एनआरटी में तो वो बचपन से लेकर आज तक की सारी पढ़ाई पूछ लेते हैं. तो ये अंतर है. द टेस्ट आइटम्स आर जनरली रिलेटेड टू ब्रॉड एरिया, इसीलिए एनआरटी में जो है वो बिल्कुल ब्रॉड कवरेज है. सीआरटी में ये आइटम्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी लेवल आर इंक्लूडेड यहाँ पे, क्योंकि हर बच्चा, हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा एक एक सीढ़ी आगे चढ़ के पढ़ाई करता चला जाए, 9 से 10 से 11 12 ऐसा करता चला जाए, तो यहाँ पे एवरेज डिफिकल्टी लेवल होती है. बट इन एनआरटी here items of easy and difficult both levels are included. वहाँ तो दोनों चीजें हैं, क्योंकि हमें तो चुनना है या सेलेक्ट करना है. Then in criterion reference test, it allows direct comparison of students year to year in terms of one's own performance level. यहाँ पे अपनी ही परफॉर्मेंस होती है. क्लास 8 में तो मेरा 70% था, अब 9 में मुझे कम से कम 80% करना ही होगा या 90% ले आऊँ तो और बढ़िया, फिर मेरा बोर्ड अच्छा होगा. ये सब अब खुद ही हम अपनी कंपैरिजन करते हैं. बट इन एनआरटी इट अलाउज टू कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर, कि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे ने कितनी पढ़ाई की है इस पे मेरा रिजल्ट डिपेंड करेगा. Then in CRT, your marks or grades are assigned for performance and promoted to next session. हम अगले सेशन के लिए उनको मार्क्स या ग्रेड्स देते हैं और फिर हम कहते हैं अब ठीक है, अब आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं. वो सेकंड डिवीजन है तो भी जाएगा, डिस्टिंक्शन है तो भी जाएगा. Then in NRT, here student is allowed to proceed to a new course or higher level only after mastery of previous contents. जब तक कि पहले की पढ़ाई का पूरा नॉलेज हम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लिए हैं, तब तक हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते. हमें सिलेक्शन ही नहीं होगा, हमारा एंट्रेंस ही नहीं कंप्लीट होगा. So in CRT, it assesses minimum attainment of objectives, while in NRT, it ensures mastery of learning objectives. The same points. It is again CRT is based on predetermined cutoff score and NRT is based on cutoff score of the reference group or norm. So these things we have learned today, so many things, and I am sure that you all have understood about the criterion reference test and norm reference test and what are these terms and then how are they different. I hope everybody enjoyed. Thank you so much. Thank you.